السلام علیکم، خبرار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. شو کا آغاز کرتے ہیں خبروں پر تبصرے سے. جی ڈاکٹر صاحب. واٹس ایپ گروپ سے نکالے جانے پر آدمی عدالت پہنچ گیا. فیصلہ حق میں آنے کے باوجود بدستور مایوس. اچھا ویسے یہ بھی بڑی گل ہے، ایڈمن ریموو کر دینا نا دوسرے بندے نوں بڑا مائنڈ ہوندا. نہیں یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن عدالت پہنچ جانا دیکھو عجیب و غریب حرکت ہے، چھچوری حرکت ہے، اور جیسے وہ بچے نہیں کرتے یوں کر کے. میں نہیں پتا میں نے کیوں کٹے. وہ ایک ہی بات کرتا میں نہیں پتا. میں نہیں پتا مینس کہ آئی ڈونٹ کیئر. تو وہ کوئی جج بھی ایسا ہوگا کوئی لاڈا ٹائپ سا، اس نے کہا کہ اچھا چلو اس کو ایڈریس کرتے ہیں جسٹ ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ. اچھا ویسے جج کیا اچھا تھا یا ویلا تھا کہ اس نے بھی کہا کہ نہیں، اس نے اسٹیٹمنٹ دینی تھی نا کہ چلو عدالت میں وہ آیا، اس نے کچھ مانگا ہے، تم نے خالی ہاتھ نہیں اسے جانے دیا، بھائی تمہارا کیا جاتا ہے، اس کو ایڈ کر لو. یہ تو عدالت پہ عقدہ بات میں کھلا کہ ہاؤ ان پاپولر ہی واز. یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ یہ واقعہ یوگینڈا کا ہے، جہاں کی ڈبورا ہے. ارے کیا ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ. ڈبورا کے دیس کو ڈسکس کر رہے ہیں. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਬੋਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੁਬਈ ਰੁਕ ਗਈ. اور آپ لوگوں کی خدمت کر رہی ہے بیچارہ. کیا بات ہوں ایس گروپ چ آ گئی نا ماشاء اللہ. کیا بات. یہ تو سارے کوئی رائٹس وغیرہ نے جڑا کہ وہ عدالت چلا گیا. قطن نہیں. ایکچولی اس نے ممبرشپ فی پے کی تھی اور یہ ایک چیریٹیبل گروپ تھا اور اس کو نکال دیا. اس نے اعتراض کیا تھا کہ آڈٹ کرواؤ، کچھ irregularities ہیں. لوگوں نے پیسے دیے ہوئے تھے اس گروپ کے لیے. پھر ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ. عام گروپ نہیں سی ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰ ਲੇ. Friends کا اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ he had always been a pain in the neck day one پہ، جو کہ تم نے یہ آڈٹ کروایا ہوا ہے، تم نے اس کا جو ہوتا ہے نا ہر وقت پینک اسپریڈر، اور کوئی کام نہیں تھا، پینک کریٹ کرتے رہنا. ان کا آگے سے یہ کہنا تھا بھائی یہ کوئی عام گروپ نہیں ہے، اس میں بڑے بڑے اسپانسرز ہیں، ایسے ایسے اس میں فلنتھروپس ہیں، ایسے ایسے ان میں مخیر حضرات ہیں جو اربوں کماتے ہیں اور ان کاموں پر لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں. آپ انہیں شیکی مت کریں. دے آر سینسیبل انف ٹو انڈرسٹینڈ. ان کے اپنے آڈیٹرز ہیں، وہ خود چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن تم ہر دوسرے دن ایک نئی بات کر دیتے ہو. پھر تم نے یہ تک کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو کمپنیاں اس میں ڈونیٹ کر رہی ہیں، کیا یہ اپنا سورس بتاتی ہیں کہ چلو تم یہ نیب والی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ گروپ چوں بھی اس بندے ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. اس پر انہوں نے اس کو گروپ سے نکال دیا. تو سر پھر عدالت نے فیصلہ کیا دیا؟ عدالت کو اس ڈیٹیل کا تو پتہ نہیں تھا. اوکے انہوں نے کہا جی اس کو ایڈ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو انہوں نے آگے اعتراض نہیں کیا، انہوں نے سر تسلیم خم کیا عدالت کے سامنے. اچھا واپس ایڈ کر لیا؟ نہیں، ایڈ بھی کیا، عدالت کا حکم بھی مانا اور خود چھوڑ دیا. اب وہ دوبارہ عدالت سے رجوع کرنا چاہتا ہے کہ جناب، بلکہ اب تک کر چکا ہوگا کہ ان کو اب ان لوگوں کو اب انہیں واپس لے کے جائے. اس پر مجھے یقین ہے کہ عدالت سے اسے مار پڑے گی، جوتے پڑیں گے. اور جج صاحب کو نہیں پڑے گا. ہاں کہ تم نے مذاق سمجھا ہوا. شکیل صاحب آج ماشاءاللہ یہاں تھے شادی کرن چلے نہیں ہیں. نہیں، ان کی ریڈ ٹائی بہت اچھی لگی. ریڈ ٹائی نہیں، آپ کا سوٹ بھی بڑا پیارا لگ رہا ہے، آپ کے شوز بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں. میرا خیال ہے شکیل صاحب آج آپ کو سب نے کمپلیمنٹ دیے ہیں. تھینک یو. میں نے آتے ہی سر میں نے آتے کیا کہا تھا؟ بولو بتاؤ. میری بات دل پہ لے لیا آپ نے. میری بات پہ چھوڑ. میں نے کہا یار تم نے تو دل پہ لے لیا. کل کسی نے کہا تھا ایکو سوٹ پایا، اتنا حسین سوٹ پہن کے. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں تو اتنے پیارے لگنے کی اجازت نہیں ہے ہرگز. یہ آپ پر بھی منطبق ہوتی ہے بات. اور آپ نے آج کٹنگ بھی کروائی مجھے لگتا ہے. تھینک یو. کدی نہیں دسن کہ پینٹ میں پریس کر کے دیتی. جو پینٹ کوٹ کرنا ہوتا ہے نا اپن ذرا چمک سے بچا کے ذرا اس کو. اچھا یار یہ کوشش کیجئے گا ایڈمن صاحب کہ نیکسٹ ویک سے ہی پنو کو میرے ولا میں شفٹ کر دیں. ادھر تو ایکٹر تے بڑھنا نہیں، تو پھر تو بھی بن جانا. اس کی افادیت یار کک کتنا شاندار ہے. پریس والا بہت اچھا ہے سر. یہ پریس ماسٹر بڑا کمال. جی جی ڈانس بھی بہت اچھا کرتے ہیں. سب تو اچھی یہ کوالٹی ہے، پونکا بہت اچھا ہے. ہاں شو کا آغاز سر گل نو بتانا پونکا نہیں کہتے. یہ اس کو شو سٹارٹر کہتے ہیں. سر سانو نہیں تو کیا یار تو بھی ہے نہیں ہے. ہنی تمہاری افادیت کوئی نہیں، تم نرا سفید آتی ہو.
तुम में से सिर्फ गजमुक्ता निकल सकता है, हाय। और वो भी 1 in a million। सर गजमुक्ता क्या? 1 मिलियन हाथियों में से एक ऐसा होता है जिसके अंदर से उसको एलिफेंट पर्ल कहते हैं, वाह, और ये उसकी आइवरी की जड़ में होता है अंडानुमा, और उसके अंदर कहते हैं बड़ी माफाकुल फितरत कुव्वतें होती हैं, और इंडियन मिथोलॉजी उसके ऊपर बहुत कुछ कह चुकी है। आप इसको गूगल करके देखिए, इंटरेस्टिंग। बहुत सारी बीमारियों का हाल, कुछ लोग तो कहते हैं कि प्लेसीबो है। हाँ सर, मैं यही पूछने लगी थी कि जैसे कुछ मिथ्स होती हैं। मैंने अपनी आंखों से उसका एक अजीब चमत्कार देखा है। क्या? तो अब ये मैं सारी डिटेल्स कैमरे क्या के ती गल शुरू ना करे ये भी गल शुरू ना करे बदतमीज। अक्सर देख एडी अच्छी वेस्टकोट पाई तुसी माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम पट्टी लग रहे हो। हाँ, मैंने भी दूर से जब आते देखा ना, मुझे बिल्कुल वही। मैं शो जान तो पहले ना भाई दा कजन समझदा रहा हूं। और वो पट्टी एडा बड़ा था प्रोग्राम मैं क्या पाप ये नहीं लगना, क्यों नहीं लगना तुम्हारा प्यारा दोस्त। कोई गल नहीं प्यारा तो था नहीं अच्छा यार, मेरे वाली लाइनें निकाल, मेरा भी हंसना भी निकाल लेना। प्यारा लोगों को गुस्सा इनकी हरकतों पे नहीं आता, मेरे हंसने पे आता है। अच्छा, मैं अपने मंझले भाई पे जुगत करता था, वो कभी नहीं ऐसा हुआ कि मेरी जुगत पे मुझे देखे, वो फौरन मुड़ के जुनैद को देखता था कि इसका एक्सप्रेशन क्या है, और जुनैद जो उसकी जुगत होनी, जुनैद ने यूं करना और अपने आप से बातें कि मैं ते अपनी गल्लां मैनू पता ही नहीं। और अच्छा, मैं ये मंजर देखता रहता, वो भी अपनी नजर गाड़े रखता था, जो ही जुनैद ने उसको देखना और हंस हंस के उसने जूता उतार के पकड़े। तो लोगों को गुस्सा इस पे होता है कि मैं हंसा हूं कि नहीं। मैं मोहसिन भट्टी की बात पे नहीं हंसा, ये हरकतें इसकी अपनी हैं, इसको करने दो। और पर्ल से याद आया कि युगंडा को पर्ल ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ये अफ्रीका के हसीन तरीन ममालिक में से एक है, और दुनिया ये दुनिया का का 13वां 14वां खूबसूरत तरीन मुल्क। खूबसूरत मुल्क है। और इस मुल्क में एक वहशी सदर हुआ करता था जो इंसानियत सोजी की बहुत बड़ी मिसाल था, दुनिया उसे इदी अमीन दादा के नाम से याद करती है। सर व्हाट्सएप की बात हो रही थी। हाँ जी, व्हाट्सएप की बात। व्हाट्सएप किस सन में आया था? Does anybody know? सर व्हाट्सएप आया 2010 या 11 नहीं 12-13 में नहीं, 9 हाँ 10, आई वाज द क्लोजेस्ट 2010 में। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ मैंने 10 में पहली दफा इस्तेमाल की। हाँ, ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜੀ ਕੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋ ਸਾਹਮਣੇ और व्हाट्सएप से पहले वाइबर हुआ करता था, तो हम जी, उस पे आने से पहले वाइबर यूज किया करते थे। तो सर व्हाट्सएप में फ्री कॉल्स वाला फीचर था तब? फ्री हाँ। कॉल्स तो थी नहीं, सिर्फ टेक्सटिंग थी। और मेरा एक दोस्त ट्रांसफर होके शिफ्ट करके फैमिली मिडिल ईस्ट में कहीं आ रहा था, तो मुझे कहने लगा कि यार ऐसी क्या बात है। मैं कि यार मेरे पास तो वाइबर भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा तुम छोड़ो वाइबर को, व्हाट्सएप एक ऐप है, वो फौरी तौर पे वो करो। और मुझे समझ नहीं आई कि ये कहना कुछ और चाह रहा है। व्हाट्सएप व्हाट्सएप होता है ना, व्हाट्सएप हाँ। व्हाट्सएप, तो ये इसको समझ नहीं आ रही, वो एक्चुअली मुझे नहीं आ रही थी। तो ये 2010 की गालिबन बात है। ਨਹੀਂ WhatsApp ਨੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ पहले कॉल्स नहीं वॉइस मैसेज कॉल्स नहीं थी, कॉल्स बहुत बाद में आई हैं। क्या वॉइस खूब- मैसेज और सर उसके बाद जब आई वीडियो कॉल्स, तो आपके जो इंटरनेशनल रिश्तेदार और फैमिलीज होती थी वो ऐसे जैसे साथ बैठी। फिर उसके साथ जो वाहियातियां फिर शुरू हुई हैं, वो काम खराब है। मैं कहता हूं किसी ने ये सच कहा, ये जो विकी लीक्स थी या जो पैनामा लीक्स थी, ये तो चीज ही कोई नहीं। जिस दिन व्हाट्सएप लीक्स आई ना, अच्छा आपने कभी गौर नहीं किया कि ये जो बड़े बड़े सियासी लोग, कारोबारी लोग, मीडिया की शख्सियत, ये जो धर लिए जाते हैं, क्या वो बेवकूफ थे, पागल थे कि उस वक्त वो फिल्म हो रहे होते हैं और उन्हें कोई हनी ट्रैप में फंस रहा है, कोई किसी चीज में फंस रहा है। वो पिछले दिनों एक इंडियन साइंटिस्ट पकड़ा गया है जिसे पाकिस्तानी एजेंट ने मुबैना तौर पे हनी ट्रैप किया, और वो रॉ का एक वो था, और उसको पकड़ लिया गया, सजा भी गालबन होगी, ये पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। तो वो सारे के सारे एक्चुअली व्हाट्सएप से पकड़े जाते हैं। नहीं, तो जब ये सब कुछ होता है तो फिर क्यों धोखा देते हैं कह के कि सब इनक्रिप्टेड है? ट्रू। ये इनक्रिप्टेड वाली बातें जो है ना, मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि पूरी दुनिया में उसने मां सिवाय चंद ममालिक के इजाजत दे रखी, खुली छुट्टी है, जितनी मर्जी फ्री कॉल Calls करे। करें। Who does that? हाँ ऐसा हातम ताई कौन है जो ये करता है? केड़ा एडा सजन आ गया साडा। किसी ने इसको स्पॉन्सर किया हुआ है कि भाई
तुम ये फैसिलिटी दो, स्पॉन्सर मैं करूंगा, डाटा मेरा। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है भला? व्हाट्सएप, इंडिया, इसराइल। आबादी के तनासब से केनिया नंबर 1 पर कैपिटा टर्म्स में। पर कैपिटा अगर देखा जाए ना, अगर टोटल 100 है आपकी आबादी तो उसमें 97 लोग व्हाट्सएप करते हैं। एक ब्रायन एक्टन था और दूसरा जैन कॉम, इन दोनों ने मिलके ये बनाया था। ये दोनों एक्स याहू थे। फेसबुक ने 21 बिलियन डॉलर्स इनको दिए इस काम के लिए। इस काम के नहीं, मतलब उनसे जब इस- खरीदा हाँ, खरीदा जब 16 बिलियन उस डॉलर, प्रोडक्ट 16 बिलियन डॉलर था, मुझे बड़ी मैंने पढ़ा ना 21 बिलियन एंड वो अब जाके उसकी वर्थ हो भाईजान उसकी वर्थ इतनी Shares, राइट। मुझे जहां तक याद पड़ता है ना, हो सकता है बिल्कुल गलत हो, 14 बिलियन में जी स्टार्ट 14 से हुई थी, लेकिन Zuckerberg 16 में ने डील हुई थी। लगाया था। Six- वो थोड़ी देर खटाई में पड़ा, उसने 15 किया, शायद 16 करके डील हो गई थी। ये टू द बेस्ट ऑफ माय मेमोरी। और उसके शेयर्स भी दिए थे ना, शेयर्स की वैल्यू पर बाद में बढ़ गई होगी। ऐसा फिर कुछ हुआ होगा। इससे मुझे याद आया है शकील साहब, ये याहू और हॉटमेल ये रिडंडेंट हो गए। काफी बैकग्राउंड में चले गए हैं। एक जमाना था तूती बोलता था इनका। मैं जीमेल हैज टेकन ओवर। याहू 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 जीमेल। मेरी पहली ईमेल वाज हॉटमेल, या सेम हियर। ड्रामा pk@hotmail.com। फेसबुक सारी हुंदी याहू ना सी। और ये कंपनी जो मार्क जकरबर्ग की है, इस वक्त मेटा के नाम से जानी जाती है, जिसके अंडर उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। व्हाट्सएप इज वन ऑफ दोस। एक और दिलचस्प बात यह है कि युगांडा की सिर्फ 14% आबादी मुसलमान है, लेकिन इसके बावजूद ये OIC का मेंबर है। और इसी तरह के 8-10 मुल्क और भी हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो OIC के मेंबर हैं। हसीन तरीन मुल्क हैगा ते ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। युगांडा बहुत खूबसूरत नाम। सब जानते हो। तुम्हारे ज़हन में- गैंडा से या गैंडा आता है या युगांडा होटल आता है रेलवे स्टेशन के पास। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। युगांडा होटल और एक वो एशिया होटल। लाहौर होटल। या अल्लाह। आपके दोस्त आपको बचपन में युगांडा नहीं कहते थे? नहीं ओए युगांडा की हाली। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਚਪਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਛੇ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਚੜ ਗਏ। लो भी उनसे जुतियां पहन ली। तू गुस्ताखी करती ਛੇ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਇਧਰ ਗਲੀਆਂ ਗੁਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਚੜ ਗਏ। ਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੁਕਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੇਟ ਹੋ ਗਈ ओए ਹੋਟਲ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਭਾਜੀ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। बस मैंने तो कहा ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ एकदम ਬੌਂਗਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਗੀ ਭਲੀ ਵੇਸਕੋਟ ਪਾਈ ਅੱਛੀ ਪਰਸੈਂਟ, ਘੜੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲਾਈ, ਸੋਫਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ अच्छा फिर क्या, इसको खींचा पलंग से नीचे खींचा। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਪਵਾ ਕੇ ਹਟੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਛੇਤਰ ਛੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਉਹਨਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਚਪੇੜਾਂ ਚਪੂੜਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ 2-3 ਜਣੇ अच्छा ਤੇ SHO कभी चपेट नहीं मारता, ਡਾਇਰੈਕਟ ਠੁੱਡਾ। वो कस के ठुड्डा मारता है और उसे बताना होता है कि मेरी चपेट नहीं है, मैं सीनियर ऑफिसर। ਉਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਧਰੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਥੱਲੇ? ਇਹਦੇ ਨਸੀਬ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਐਸਦਾ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਸੀ। ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾਵਾ ਇੱਥੋਂ। नहीं तो फिर ठड़ास करके लगी। ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਵੀ ਲਓ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋ ਪੱਲਿਓ ਨਾ ਪਾਓ। ਫੜਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੱਸੀ, ਫੜਾਸ ਦੱਸੀ। ਫੜਾਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ। अच्छा यार फिर ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਬੋਲੋ ਸੋਨਾ ਧੱਪਦੀ ਅੱਗੋਂ। और झूठ बहुत बोलता है ये। ਜੋ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਉਧਰ ਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੜ ਗਏ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ SHO ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੇ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰਕੇ। ਕਰੋ, ਹੱਸੋ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। आप तो भाग गए थे, सब मनाजिर कैसे देख रहे थे? ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। बबू आप कोई पुन्नू का वाकया बताएं। ਜ਼ੋਲੋ ये हर जगह से फरार हो जाते थे और ये पकड़े जाते थे। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ये ਹੁੰਦਾ ਸੀ मार ਕਿ खा रहे ਤੁਹਾਨੂੰ होते थे, इसलिए ये वाक्य सुना नहीं सकते। ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਤਨ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ। ਪੁੱਤਨ ਪੁੱਤਰ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ। अच्छा तो पहले थता नहीं सी लड़ाइयां ਵੇਖ थता होया। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ SHO ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਠੁੱਡੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫੜ ਕੇ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਦਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਫੜੋ ਦੁਰਾਇਆ। ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 2000 ਤੇ ਲੇਵੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਲਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਝੂੜ ਲਾਓ, ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਲੇਵੀ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਫੜੀ, ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਨੇ ਇੰਜ ਖਲੋ ਕੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਲੇਵੀ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ।
ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਚਿਪ ਸਾਰੀ ਤੇ ਉਹੀ ਲੈ ਵੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣਾ नहीं वाकई ਸਟਰਗਲ में बहुत कुछ हुआ है छोड़ो ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਫੇਰ ਹੋਈ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ अच्छा उसने इसके पैसे भी मारे फिर ਪੈਸੇ ਭਾਣੇ ਉਹ ਭਲੇ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹਲੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਚਪੇੜੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਲੇਵੀ ਤੇ ਬਚਾਉਂਦਾ पहले वो गड्डियां ने मारे दी ते लेवी डिग्गी ਕੌਣ ਇਹ ਬੰਦਾ कहता मर जाता लेवी ते बचाता ਵੀ ਇੰਜ ਕੌਣ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦਾ अच्छा वो जो कुछ भी है जो कुछ भी है ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਲੋ ਬਦੇ मेरे एक सवाल का नहीं सीरियस जवाब ਓ अच्छा अगर ये सब कुछ भी एक्टर्स करते थे सर्विसेज में शामिल भाई, थे, नहीं तो जी। मैं यहाँ तुमसे ये काम क्यों नहीं ले रहा ਸਗਲ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਾਣ नहीं तो अभी आप विला के लिए बुक हो गए अच्छा इनका फैसलाबाद से लियाकत भाई हनी भाई ने जानना तारक साहब ने बैनर देना बनने वास्ते तो तारक साहब की आदत होंदी सी जाके चेक करना कितने कितने बने तो बैनर नहीं बने लियाकत नूं कहंदे ओ बैनर कितने कहंदा तारक साहब एडा सोहना बैनर बनया सी मेरा दिल नहीं कीता बनन वेलकम बैक जी खबर है कि दोस्त से मिलने भारत जा पहुंचने वाली पाकिस्तानी खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ 4 बच्चे लेकर गए ਆਪਣੇ जी 4 बच्चे घर से निकले ਕਰਨੇ कर- ਚਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ नहीं दोस्त मतलब वो फेसबुक पे दोस्ती हुई और बच्चों को लेकर ये 25-26 साल की औरत है वहाँ गई है तो उससे मेल मुलाकात हुई नेपाल के जरिए एंटर हुई और पुलिस ने धर लिया इसे भी उस लड़के को भी और उस आदमी को जिसने किराए पे घर दिया था वाह अब बेचारी तारीखें भुगतेगी कहाँ पर? इंडिया में ये नोएडा में हुआ है वाकया उत्तर प्रदेश सर बच्चे वापस भेज दिए गए। नहीं सब कुछ वहीं पे है बच्चे वापस कैसे भेजे ये वीडियो गेम के जरिए जो हमारे पास रिसर्च पहुंची और मेरा ख्याल था कोई लूडो शूडो खेलते होंगे तो उस पे होगी ये पबजी के जरिए हुई सर ऐसे तो सोशल मीडिया से लोगों की दोस्ती होती है और शादियां भी हो जाती हैं। बेशुमार हुई हैं लेकिन ये शादी देखो कैसी बेतुकी वो शादीशुदा है निकाह के या तो अच्छा मेरा भी ये गेस था होगी बेचारी कोई तलाक याफ्ता तो उसका अपना डिसीजन है नो प्रॉब्लम लेकिन ये तो ना सिर्फ क्राइम है बल्कि इट इज अ सिन एज वेल क्या सोच कर और वो बंदा इसके लिए अपील कर रहा है बेचारा कि मैं अपनी बीवी को वापस लाना चाहता हूँ एक्चुअली इज डूइंग इट फॉर हिज किड्स Kids, जी हाँ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ और वो मुल्क से बाहर कहीं मेहनत मजदूरी कर रहा है तो वो लड़का खुद क्यों नहीं आया उसको मिलने के लिए? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ और नेपाल का आपको पता है क्या वजह है नेपाल जाने की कि नेपाल से मूवमेंट बहुत इजी है हाँ। वीजा नेपाली रिक्वायर- बगैर वीजे पासपोर्ट के इंडिया आ जा सकते हैं बेशुमार नेपाली इंडिया में और इंडियन नेपाल में काम करते हैं और ये जो नोएडा है इट इज़ अ वेरी डेवलप्ड स्मॉल सिटी स्मॉल भी नहीं कहना चाहिए 1 मिलियन के करीब अब इसकी आबादी हो गई है टेक्निकली इट इज़ पार्ट ऑफ यूपी लेकिन प्रैक्टिकली ये दिल्ली का ही एक सैटेलाइट शहर है इंडस्ट्रियल एरिया है उसको शहर बना न्यू दिया गया। ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और अब वहाँ पे बड़े बड़े पार्क्स आईटी पार्क्स और एंटरटेनमेंट सेंटर्स और मैंने ये बेशुमार- सारा देख रखा है और उस वक्त ये 2001 की बात है 2000 की गालबन और उस वक्त काफ़ी बस ऐसे ही था गुजारा था बिल्कुल ऐसे ही जैसे लाहौर टू शेखुपुरा रोड है ना इंडस्ट्रियल एरिया साइडों पे ट्रैफिक बेहंगम इस तरह का लेकिन जैसा आपने लेकिन बताया हाँ, अब तो गुड़गांव की तरह ये काफी डेवलप्ड एरिया लेकिन बहरहाल ये अहम बात ये है जैसे महम बता रही है कि बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिनमें लड़की लड़के ने ताल्लुक डेवलप किया और शादी हुई बड़े ऑनरेबल तरीके से सखर में ही वाकया हुआ एक हिंदू लड़की पर फिदा हो गया हिंदू लड़का इंडिया से वो पूरे खानदान के साथ सखर आया पाकिस्तान बरात ब्याह किया बरात लाई लड़की को ले गया बारात वाह वाह ये बात और हंसी खुशी रह रहे हैं सर जी ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਤਰੀਕਾ ਵੀ यही है सर तो सर धोखे भी बड़े हुए नहीं हो जी जी ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड बना था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की आंखें खुल गई हैं कि इसी तरह ये भी हनी ट्रैप ही की एक किस्म होती है कि आपको मोहब्बत के जाल में फंसा कर ले जाते हैं और वहाँ जाकर फिर आपके ख़ानदान से तावान लेते हैं आपको टॉर्चर होता दिखाते हैं जी 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 कि ये हालत है तुम्हारे सपूत की ना सिर्फ इसमें बल्कि रूटीन में जॉब का लालच देकर
یہ جو کشتیاں ڈبوئی جاتی ہیں, جو کچھ کیا, بڑے بڑے ظالم لوگ, بڑے, آخر اللہ نے جہنم کو بھرنا بھی تو ہے نا. ایک اور ਧੋਖੇ ਨੇ ਸਰ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਲਾੜਾ ਪੁੰਨੂ ਵਰਗਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਲਮਕੇ ਨੇ. ਨਹੀਂ ਪੁੰਨੂ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਜਾਹਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਈ. ਇਹ ਅਜੀਬ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ. ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ. और पुनू इस बात को काफी साल हो गए, 1969 में इंसान चांद पे पहुंचा. वैसे अब मुहावरा चेंज होना चाहिए कि दुनिया अनकरीब मार्स पर, मरीख पर आबाद होने वाली है. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਉਹ ਜੇ ਚੰਦ ਤੇ ਫਸੇ ਨੇ. मैं की क्या सी शुरू चांद तो बहुत पुरानी बात. राजा अनवर भुट्टो साहब के एडवाइजर होते थे 70s में. उन्होंने एक दफ़ा सुनाया वाकया कि जब इंसान की एक कंट्रोवर्सी थी कि चांद पे गया कि नहीं गया, तो उनका गांव गुजर खान से आगे है काफ़ी, 25-30 किलोमीटर. तो कहता है गांव के कुछ लोग सियाने जो थे डिबेट करते रहे कि गया कि नहीं गया. वो किसी नतीजे में ना पहुंचे तो मेरी वालदा के पास आए, कि उनको बहुत अक्लमंद औरत समझा जाता था. तो उनके पास आए कि अम्मा जी ये दसो कि गोरा जड़ा है चांद पे गया कि नहीं गया. तो सोच के कहती हैं हद तो हद भी गया उसी, तो गुजर खान तक गया उसी. ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਤੀਫਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ. भाई इतना काफ़ी है. ਅੰਦਾਜ਼ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ. शकील साहब खुद बहुत क्यूट है, मेरे फेवरेट. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋੜ ਦੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲਗਾ ਲੂੰਗਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ फ्रूट कम करे ज़रा आप अपने ना, आपका चेहरा बहुत फ्रेश है. शकील साहब जैसे बंदे देख कर ना एहसास होता है कि हाउ कम इतना जेंटल आदमी, क्या बात. इतना सिविलाइज्ड, इतना वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड और हाईली एजुकेटेड, ये कैसे इस सोसाइटी में कैसे रह रहे हैं. एंड ही इज अ मिसफिट, आई टेल यू. यस. इस आप सोसाइटी माने में या ना माने, बेशक. नहीं इसमें तो खैर बहुत फिट नगीने की तरह, जिस मुल्क से आया इज अ मिसफिट. मैं आपको साबित कर सकता हूँ, पूरी क्रोनोलॉजिकली मैं आपको साबित कर सकता नहीं, शकील साहब जैसे बंदे ना बड़े किसी को कुछ कहते नहीं, अंदर ही अंदर ना बहुत कुछ सोचते हैं, फिर अंदर मुँह करके ना गाला काट के इसी. इसने आज तक गाली नहीं दी. मैं पिछले 45 साल से उसे जानता हूँ, इसके मुंह से मैंने आधी गाल भी किसी मजाक में नहीं सुनी. नहीं, शकील साहब वर्गे बंदे मुंह जो नहीं गाल करते, दिल से. सिर्फ एक्सप्रेशन. अच्छा ये मुझे बहुत दफा करते थे. ये मैंने आज पता लग गया. अच्छा शकील साहब कितने खुश हुए इस बात पे, तालियां भी बजा रहे हैं. I should get into the spirit. मैं तो शकील साहब को और FSJ को दूर से देखता हूँ ना, मेरा दिल चाहता है मैं सड़क के किनारे कसौटी शुरू कर दूं. वाह, मेरे हम पल्ला आ गए दो में ही. हम पल्ला क्या, ये दोनों असातिज़ा हैं, मैं तो इनका फॉलोअर. सर आप अपने दोस्तों की उस्तादा की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं. क्यों नहीं करनी चाहिए. बारहा उनका जिक्र करते हैं. मेरे दोस्त या मेरे जूनियर्स होते थे या मेरे सुपर डुपर सीनियर्स ਇਹ होते ਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ. थे. मैंने खेली हुई है ताश. गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे फिजाउर रहमान. उनकी दहशत का आलम ये था, मेरे समेत, मैं तो कुछ भी नहीं होता था, सामने से वो आ रहे हो ना तो आप चलते चलते पहले ठटकते शशदर रह जाते कि सामने जैसे जंगल में कोई शेर आ रहा होता है ना, और एकदम आप रास्ता चेंज करते थे. हालांकि पहले भी प्रिंसिपल्स बड़े देखे हैं, बाद में भी बड़े प्रिंसिपल्स आए, लेकिन फिजाउर रहमान साहब की मेरी उनसे दोस्ती थी. मजीद निज़ामी साहब, उनकी इतनी दहशत थी कि आरिफ निज़ामी रास्ता बदल लेते थे. हालांकि उनके भतीजे भी थे, बड़ा ताल्लुक़, बड़ी दोस्त. मेरी पर्सनल फ्रेंडशिप थी, और इसकी बड़े बड़े लोग गवाही देंगे. किदवाई साहब अल्लाह गरी के रहमत करे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट अनवर किदवाई साहब, वो बताया करते थे, भाई भतीजे जो आज गुफ्तगू तुम्हारी सुनी है ना निज़ामी साहब के साथ, इतने साल इनकी खिदमत की. मैं आज, हालांकि मैं इनका एज मेट हूँ, बल्कि थोड़ा सा सीनियर हूँ, मैंने कभी इतनी फ्रैंकनेस नहीं दी. और ऐसी ऐसी बात आपके थिएट्रिकल्स के ऊपर, मैंने बताया नहीं आपको, अदाकारों के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में, वो कई दफ़ा गुफ्तगू करके हंस हंसा के कई दफ़ा उनके पास आए होते थे जनरल हमीद गुल. तो मैं साथ खाना भी खाता, मज़े का लंच हम करते, गप शप शरारतें, और कहते लो भाई तुम्हारा तो मैंने कॉलम बना दिया, अब तुम्हें किसी सोच विचार की ज़रूरत नहीं होती. FSJ किसको, आप यकीन करें कि पूरी इंटरफ्लो में ही वॉज वन ऑफ द डायरेक्टर्स, एग्जेक्टिव डायरेक्टर था. ताहिर खान उसका
हेड था, उसकी बेगम, और लेकिन मजाल है किसी के बारे में कोई ऐसा, लेकिन FSJ को देखने करंट सा दौड़ता था कि यार, क्योंकि वो बॉस है, बॉस अगर आपसे तगड़ा है ना हर चीज़ में, बॉस को आपसे ज़्यादा पता है, तो और आपका दिल चाहता है उसको रिस्पेक्ट देने को, आपको उसको मोहब्बत देने को। मैं FSJ को उसके मुंह पे कहा करता था, जब भी आपको मौका मिले उनसे पूछिएगा कि क्या ऐसा हुआ है कि कभी किसी इंतहाई जूनियर ने ऐसे ही खड़े होकर कहा कि सर एक दिन आएगा मैं आपको सरपास करूंगा इंशाल्लाह। खुदा की कसम मैंने कहा था। और दिस हैपेंड इन इस्लामाबाद। और उस बंदे की बुर्दबारी और उसकी फराख दिली देखें, ही सेड यू मेंशन 2 years, यू कैन डू इट इन 2 months। जो तेरी स्पीड है। वाह, ये तो सर इसके लिए आपको उनका मूड भी देखना पड़ता था। नहीं, मैंने मोड नहीं देखा, मैं सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस देख के। बॉस का मूड नहीं फड़िया जाता, मैं इसके लिए टेंशन लेना क्या? तो लांगे तो आओ अंदर, खामोश, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम, खामोश, मीटिंग हो रही, चलो। कहते इधर गेट पे खड़े हो, जो भी है इसको चुप करो। और मैं होते लोग हाथी है, लंघ जाओ। नहीं, उस दिन तुमने बहुत अक्लमंदी की थी, उस दिन बाकी बड़ी सेंसिटिव मीटिंग हो रही थी। तो तुम लोग जिस तरह आते हो तातारियों की तरह आते ही सर करते हो, सबसे पहले कब्जा करते हो, तो मैंने कहा आज जरा मुहज्जब अंदाज में एंट्री डाल। अच्छा, वो था लुकमा मैं बनता पहला। नहीं, इसलिए कि इत्तेफाक से तुम सबसे आगे थे। तानो किस्मत घेर कर के होते सर अस्सलाम वालेकुम, मीटिंग हो रही, चलो। ਸ਼ੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। क्यों? ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं पता नहीं 12 बजे आਉਂਦਾ, आधा घंटा गाना ਕੱਢ के निकल जाता। मेरे अब्बा जिन दिनों एडमिट थे ना PIC में, तो प्लाज्मा के लिए बार बार भेजा जा रहा था, तो हमारा एक मुलाजिम था, बजाय लाने के थोड़ी देर बाद मुझे नज़र आता वो वहाँ खड़ा है। अच्छा। डॉक्टर पूछता है कि आ गया प्लाज्मा, तो मैं कहता जी भेजा हुआ है सर, फिर वो वहीं खड़ा। अब बार बार कहने के बावजूद वो वहीं कहते बस जा रहे हैं जी। आखिर मैंने उसे बुला लिया। अब वो प्लाज्मा मिलता था मेंटल हॉस्पिटल के अंदर एंटर होके ना, साथ ही लैब थी जी जी। मेंटल हॉस्पिटल बिल्कुल साथ है उसका। तो अब उसको बार बार भेज, मैंने कहा इधर आना, वो तू जानता क्यों नहीं पे? अंदर ही चला था, मैं जाऊँ, मैं डर है को पागल ना खुले फिर उस मेरा प्लाज्मा काट देना। पास्टर भाई आपके साथ कोई वाकया नहीं हुआ, अचानक बर्थडे हो गए? सबके साथ वाकयात होते हैं और मेरे साथ भी हुए हैं। ये वाकयात नाल ही एंजॉय है। पास्टर साहब वर्गे पायलट ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ। क्यों? ਐਵੇਂ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੁਸਾਫਰ ਟਿਕਟ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਗੁੱਡੀ उड़ाई है आपने पास्टर भाई? गुड्डी ही बहुत उड़ाई है जी, बहुत गुड्डी बाजी। आप सब ने गुड्डियाँ उड़ाई होंगी, लूटी होंगी, डोर लगाई होगी, डोर चुराई होगी, बेशक। ये सब कुछ किया है, लेकिन आप दूसरी मंजिल से गिरे नहीं होंगे। आप गिरे थे सर? जी ਇੰਨੇ ਖੁੱਬ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ? हाँ, पेज पे पड़ा हुआ तो पेज पड़ा हुआ तो तुम्हें पता है फिर, तो आप पीछे चलते हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ। लाशौरी तौर पे पीछे चलते हैं। तो सर चोटें क्या आई? वो समरसॉल्ट कर गया, वरना तो गर्दन के बल गिरता पक्का फरिश्ता नीचे। ਓਹੋ यार बड़ा ने किस कदर हसरत यास नाउमीदी का मुजाहरा किया। क्यों नहीं हुए? अच्छा, जिन्हें पिना पड़े सी ना, उन्हें भी नहीं किया, पीछे छात मुक गई। वो मेरी कजन थी, वो मेरे से ज्यादा बेवकूफ थी। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। पास्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਕਦੇ ਪਤੰਗ ਲੁੱਟਦੇ? ਕਾਨੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆ, ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੋ ਥੱਲੇ ਤਾਇਆ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, तो फिर ताए का क्या बना? ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਤਾਈ ਨੇ ਇਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾ ਕੀਤਾ। वेलकम बैक। खुदिनोज रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, वाह। और आगाज़ करेंगे हस्बे मामूल उन अल्फाज से जिनके नामों से बहुत से शहर मौसूम हैं। जी। अच्छा, वो आज आगाज करने पे आ गए हैं, आप में से कोई कुछ नहीं बोला? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। क्यों? नहीं, आप लोग एहतजाज करते हैं पहले। ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਕੱਢ ਦੇਗਾ। कर देगा। देखो यार ये कैसा फ्री हो गया वैसे। बदतमीज है। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ? ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਤੜਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਰਕਤ ਉੜ ਜਾਂਦੀ। यार वो पाशा क्यों नहीं आता? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ, उसने एक दफा इसको इतनी जोर से मारी, मैं यहाँ बैठा देख रहा था। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਦੂਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਜੇ 80 ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਜੇ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਟ ਹੋਇਆ, 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 ਹਜੇ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ हजे हिट होया तो कट। अच्छा, मैं वैसे ही कह रही थी कि आप लोगों ने कोई इतराज नहीं किया, अब आप लोग चुप ही नहीं कर रहे। अच्छा पास्टर अचानक मेरे को लगा तंदूर बंद करके आया। आप उनको हल्का ले रहे हैं, वो ट्रेंड कमांडो भी हैं। मुझे उन्होंने बताया। तो हमने क्या किया? यार ये क्या किया? ताने की भान गरारे करी ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अच्छा मैं कहना से मैं कि बैन मुझे बताया। ਤੋਬਾ ਹਨੀ ਭਾਈ, ਉਧਰ ਵੀ ਤੋਜੋ ਦਿਓ, ਫਰੰਗੇ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। नहीं क्या जुगते कर रहा था? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਪਈ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡਮਾ ਡਮ ਡਮਾ ਡਮ। नहीं उसकी पसंद का होगा ना आज खाना। आज रोज ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਡਿਲੀਵਰ अच्छा तू ये 10 बब्बू ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਥੋਂ ਮਾਰ ਪਈ। अच्छा जी, बहरीन। बहरीन। बहरीन कहते हैं ना, बहरीन, तो वो बहरीन गलत है, दैट इज बहरैन। ऐसे फ्रीकैन, फरीकैन, मगरबैन, मशरिकैन, मगरबैन। बहुत से लोग हमारे यहाँ कह देते हैं दोनों फ्रीकैन। हाँ गलत है। फ्रीकैन के साथ दोनों की जरूरत नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। और ये बहरैन क्यों कहते हैं? पानी से बहरैन, बाहर क्या पानी से ही बहरैन है? कैसे? दो पानी बाहर आंदा सी ना, उन्होंने क्या बह रहा है बाहर आ रहा कोई पता मले से लग रहे थे आपकी टूटी में से पानी बह रहा है। टैंकी लीक से कुंडी खड़का के पानी बह रहे हैं। बह रहे अच्छा ये तो मैं 2-4 ड्रामे ओए थोड़ा खाया करो यार बहरैन दा जिक्र नलायक बच्चे ने नहीं पियो कहंदा चलो बहरैन। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। अच्छा मैं जानना चाहता हूँ इतनी लजीज चीज क्या थी कि आप सब ने इतना खाया? मैंने नहीं खाया। मैं सर निहारी ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਨਿਹਾਰੀ। तो बहुत आला होगी, हाँ जी, बहुत अच्छी थी। जैसे बर्न्स रोड की निहारी है। पता नहीं अचर ने था बकरा पकाया। हड्डी हड्डी सी पुन्नू पहले बजाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। वो ऊंट की निहारी होगी। लाजमात भी पूरे सी, अदरक, हरियां मिर्चां, नींबू, लेमन। तभी बच्चों ये जो मोहब्बत है। साथ में हल्का साथ में फुलके भी थे। नहीं मैं तो दाल खाधी और नबीद फाल साहब ने बनाई आज। मक्खन में बनाई आज। वीर साहब ने कहा ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਬਣਾਈ? टेढ़ी उंगलों से। और लोगों को नहीं पता कि उसकी उंगल। कोई नहीं तो हाथ ना शॉल ला दे। यार बहुत ही बेहुदा हो तुम, और यहाँ आकर तो लत्थी चढ़ी तुम्हें कोई नहीं। ਉਹ ਨਿਹਾਰੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਏਡੀ ਸੀ, ਪੁੰਨੂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਹੋਸਟ। बहरैन, दो पानियों के दरमियान। ये दो पानी कौन से हैं? दो समंदर मिलते हैं वहां पे, और अगर आप गौर करें तो दोनों का शेड डिफरेंट है। यस। लगता है कि जैसे एक ग्रीन गाढ़े नीले में गदला ग्रीन मिल गया है। अच्छा वो मैंने देखा सर, वो एक ब्लू और एक ग्रे। जी ये वो जगह बहरैन वो है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ जी। कुरान पाक 'ਚ। सर क्या कुदरत है अल्लाह की, वो पानी। मिक्स नहीं होता सर। और हम उससे इंतहाई करीब बैठे हैं इस वक्त, हाँ। इंतहाई करीब। फिर लफ्ज है कवैत। लोग कुवैत नहीं कहते। एक कवीत है। कुवैत, कवीत कबीत भी कहते हैं। कहने को हर चीज कहते हैं। ये असल लफ्ज है कवैत। देख के कवैत बेचने वाला बैठा ਹੁੰਦਾ कवैत 20 रुपए किलो कवैत। कूत है, कूत, अनकूत कूत, वो कूत है। अनकूत जो है ना थे है, ये है कूत कला। कवैत छोटा कला, कूत बड़े कले को कहते। जैसे कला लाहौर है शाही कला, लाल कला, वो कूत है। वो कूत है। छोटा कवैत है। अगला लफ्ज है कतर। कतर। हाँ सर कतर को तो कतर ही कहते होंगे। कतर ही कहते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है? ये कहाँ से आया है? सर मैं बताऊं, जी वो जो हिरनों का जो है पता नहीं, उनका कोई निशान भी है इस। ये ऑरेक्स की बात कर रहा है। ऑरेक्स तो बकरा होता है ना, ऑरेक्स हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। जो उसके कैसे। और आपको पता है कि शेर का पेट फाड़ देता है वो। और क्या खूबसूरत जानवर है यार। कतर क्या कौमी एम्बलम है, नेशनल एम्बलम है सर वो खादा जाता जी। हिरन है बहुत लजीज। कोलतार। कोलतार इसका मतलब है कि लुक,
वो कहाँ से, मतलब उसमें قطر عربی کا لفظ ہے نا. نہیں وائی قطر کا نام کولتار نکلتا ہوگا گیس اور تیل کا ریمینز کے طور پہ. جب کروڈ آئل نکلتا ہے ویسے ہی اس تو وہ کلر کا ہوتا ہے. کولتار جیسی شکل ہوتی ہے. لک ورگا نکلدا وچ. موسٹ پروبیبلی آلدو آئی ڈونٹ نو, یہ میرا گویڑ ہے, میرا گیس ہے کہ یہ ایسا ہی ہوگا. قطر کا کیپٹل دوحہ. دوحہ کو دوحہ کیوں کہتے ہیں؟ دوحہ کا مطلب کیا ہے؟ انہیں کیا ایک کا کہنا نہیں دوحہ, یہ دوحہ. پنجابی میں دو ہا کا مطلب تھا. پہلا ہا کہ دوہا دوسرا تھا. دوہا جو ہے وہ سرائکی ہے. اچھا کہتے یہی سر ملتانی لفظ یہی ہے. ہک ملتانن جٹی اگے دل دا ورکا تھلیا, ہاتھ ہلا کے آکھن لگی جول وے سائیں جول. بندہ بےعزت ہو گیا نا, شیر بنا رہے اس میں بیزت کیا ہوا؟ ہیں. کیا جا نکل جا جول. بس اس نے یہی کہا کہ بھائی جاؤ بھائی, نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ کہیں اور کمیٹڈ ہو بیچاری. اتنا مارجن دیتے ہیں ببو, دل پہ نہیں لے لیتے. دوحہ دا مطلب دسو, نانی نہ بن جا کرو. اوئے آرام نال دھیان نہ پوا سالیا, اور سکنٹ لاਉਂਦਾ ہی. اچھا جی, دوحہ کا مطلب ہے پیڑا. آٹے کا پیڑا ہوتا ہے, ڈو سے ڈو جو ہوتی ہے نا, اس کو بنا کے جب عورتیں روٹی پکانے کے لیے پیڑا بناتی ہیں نا گول, اس کو کہتے ہیں. جب اس کا ایریل ویو دیکھا گیا نا تو یہ تو بالکل پیڑے کی شکل کا ہے. so they started calling it دوحہ. اچھا, ہاتھوں میں پہننے والے کنگن کو بھی دوحہ کہتے ہیں. وہ بھی گول ہوندا گلائی. اچھا جی, دوحہ کا منبع جو ہے نا داہا ہے, اور داہا ہے کسی چیز کو انڈے کی طرح گول بنایا. داہا انڈے کی طرح گول بنایا, یعنی اوول شیپ میں, جیسے روٹی کا پیڑا ہے نا. اور قرآن پاک میں 1450 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَاهَا, والارض زمین بنائی پھر اس کو گول کیا انڈے کی طرح. کیا شاندار, یعنی کیسی بڑی سائنسی حقیقت 1450 سال پہلے بتا دی گئی. اور سقراط کا, آرکمیدس کا, ان سب کے گناہ ایسے ہی تھے کہ جی دنیا زمین گول ہے. یہ کیا بکواس کر رہے ہو, زمین گول ہے, زمین گول ہو ہی نہیں سکتی, جھوٹ بول رہے ہو تم. ہمارے بزرگ جیسی بات پہ کہتے سر ساڈے وڈیاں نے کیا ہے. وڈے اگر نلائق ہون تو انہوں نے ڈس اون کریندہ ہوندا ہے. بچھو لڑ کے جاوے تے فوراً مار دے, انہوں تے درد ود دے. یہ حقیقت ہے نا, منیا نہیں کیونکہ بہتے پڑھ لکھ گئے نے. وہ بیٹا تینوں میں لڑاواں گا نا تے میں چھڑ دیاں گا. نہیں خود ہی ہونی ہے, چھڑ دے. اچھا جی چلے جان پھر. وہ جو ٹرے گا انہیں درد ٹریول کرے گی. آپ کو پتہ ہے جب ظاہری بات ہے تازی چوٹ ہوتی ہے اس وقت نہیں درد ہوتی, تھوڑے دیر بعد ہونا شروع ہوتی ہے. آپ سے میں ایگری کرتا ہوں, دیکھنا آپ اتنے اچھے طریقے سے سمجھاتی ہیں. اگر آپ نے مار دیا تو کیا اس کے بعد علاج کی ضرورت نہیں؟ بچوں پہ لعنت بھیجے, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں آپ کی بات سے 100% ایگری. نہیں, ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ میرے پہ بھی لعنت بھیجیں. بس بولتی رہیں 5 منٹ فرنگی آسفی ہم مک جوئے بہت شیر رانا صاحب. بس اے گل نا تے پرفیکٹ منہ تے چڑھی ہے, یہ نہیں فنبلو ہے. 3-4 منٹ بعد ہنی کچھ ہلدا انج کر کے, وہ ہے نہیں ہلدا, اندروں روٹی ہلدی کر دوں اور سر انج کردا میں دمبا قوالی سنن دے. میری توبہ میری توبہ. کالج والے باکسر دے ہو جائے مکے ہوندے. ایک بڑا ہے کہ چھوٹا. سقراط کا کیا انجام ہوا تھا؟ مر گیا ہونا, اور کیسے؟ سزائے بیماری ہوئے گی. موت دے دی گئی تھی اس کو. میں نے ڈھونڈا تجھے ذہن سقراط میں, ایسے ہی گل تو انہوں مارا تھی, اور مجھے زہر کا جام پینا پڑا. زہر بھی لیے تھے سر, اسے پلایا گیا تھا, اس نے کہا تھا تم نے یہ, اس نے کہا میرے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا, تم کہہ رہے ہو نا ایک دفعہ کہہ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. لو میں تمہاری خاطر, تمہاری خوشی کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا, جو اس کی شکل ہے وہ ایسی ہی رہے گی. لیا ادھر لیا میں پیا. اچھا جی, مستقل مزاج, اس کا کیا مطلب؟ مستقل مزاج کے ایک طرح کا ہی پکا بندہ, پکی سوچ سوچنا والا. ایک اس پہ قائم رہنے والا, ایک ہی مزاج کا مطلب ہے کہ قائم دائم رہنے والا اپنے قول و فعل پہ. ایکچولی سید سلمان ندوی اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کم عقل شخص. اچھا جی, مورکھ, جس کو بات کی جلدی سمجھ نہ آتی ہو, وہ مستقل مستقل مزاج. یار ایک اس کا مزاج مستقل ہے, ایک جگہ پہ
अड़ा हुआ है, टिका हुआ है, आगे बढ़ता ही नहीं। ਤੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ। बेवकूफ़ वही होता है। ਸਾਈਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ? साईं भी जैसे कमला सा नहीं होता, कमले को कहते हैं। कम अकल। ਜੀ ਜੀ। मासूम सर कहते हैं। साईं साजन से निकला हुआ है, साजन से साईं, सैया भी इसी से निकला है, सैया साइया साईं। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਆਂ ਕਿਧਰੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਧਰੇ। वो साई है, साई। साई पकड़ाना गई है मेरा वो सूट साई एडवांस को कहते हैं कि साइयां किधर ते बधाइयां किधर। एडवांस कितों फड़िया है तो जा के। ਵਧਾਈ ਉਧਰ ਮੰਗਣ ਜਾ। बाज लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब जैसे आप जैसे आर्टिस्ट, वो इधर से बात करके किसी और चैनल के साथ मामला कर रहे हो, इससे ज्यादा मजे का कोड़ कोड़ किधर थे, अंडे किधर। नहीं तो फिर साईं वो झल्ला वाला बंदा कैसे बन गया? कसरत इस्तेमाल से वो हो गया। ਸਾਈਂ ਲੋग जबरदस्त बब्बू। बब्बू की शक्ल किस कदर उकताए हुए बैठे हैं इस सेगमेंट में बब्बू। उसको नींद आई है एक्चुअली। बांदर दे चने खत्म होए ना तो इस तरह। आज का शेर सुभान अल्लाह, वाह। जफर इकबाल साहब कहते हैं, मैं जा निकलता हूँ रोजाना उस गली में जहाँ, मैं जा निकलता हूँ मैं जा निकलता हूँ रोजाना उस गली में जा। उस गली में जहाँ किसी तरह का मुझे काम भी नहीं होता।